Good morning, dear students. I am Dr. Indermal Goyal. Today in this video, we will discuss preparation of sales journal or sales book. You know, in case of a large-scale business organization, where the number and volume of transactions tends to be high, it is necessary to divide the journal. It is essential to divide the job of the accounting clerk into different segments according to the nature of transactions and the number and volume of transactions. Sales book is one of the most important subsidiary book in which all the transactions of goods sold on credit are recorded date-wise in a systematic manner on the basis of or with the help of credit memo, sales invoice. The format of sales book is specific, and in every business organization, most of the transactions of sales are on credit. As you know that we are living in the modern tough competitive era in which it is necessary for every business organization to sell the goods on credit. Due to tough competition, we have to sell the goods on credit. If you will not sell your goods on credit, if you will not provide facility of credit purchase to your customer, then your turnover, your sales will be less as compared to your competitors. So if you want to earn more and more amount of profit, your sales volume must be high, and sales volume will be high only when the goods is also sold on credit. If we sell the goods on credit to the known and even unknown customer, it means we are giving the value to our valuable customer. So sometimes the customers who have potential to pay the price of the goods purchased at the time of purchase, but if it is available on credit, then they would like to avail credit facility. So it becomes obligatory on part of the business to sell goods on credit to the customer. And if you allow credit facility, then some part of our credit sales which create debtor. So some part of our debtor will not be realized, may not be realized due to insolvency of the party, and there may be loss on account of the bad debts. तो अगर आप एक व्यवसाय कर रहे हैं तो माल लाभ कमाना है तो उधार बेचना पड़ेगा, उधार माल बेचते हैं तो कुछ देनदार ऐसे होते हैं जो पेमेंट नहीं करते हैं, या कुछ देनदार ऐसे भी हो जाते हैं जो दिवालिया हो जाते हैं, कोर्ट में इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाते हैं, तो देन वी लॉस आवर लीगल राइट टू क्लेम एनीथिंग फ्रॉम देम. तो इट रिजल्ट आउट लॉस टू द बिजनेस. पर ऐसा लॉस बिजनेस में होता है बिकॉज बिजनेस इज ए गेम ऑफ रिस्क. इफ यू हैव कमेंस्ड द बिजनेस, you should keep this fact in mind that there may be some amount of loss on account of bad debts. तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेल्स बुक की. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि विक्रय बही या विक्रय जर्नल, इसमें केवल माल का उधार विक्रय का लेखा किया जाता है. अगर किसी व्यवसाय में कोई पुरानी संपत्ति को उधार बेचा जाए तो वो लेखा इधर नहीं होगा. ओनली गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन सेल्स जर्नल, इन सेल्स बुक. तो हमारा आज का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सेल्स बुक. Preparation of sales book. So sales book is
one of the important subsidiary book. It can be prepared in vertical form or it can be prepared in horizontal form. In horizontal form हम अलग अलग कॉलम्स बनाते हैं, डेट, पर्टिकुलर, कॉस्ट ऑफ गुड्स, फिर जीएसटी, एसजीएसटी यानी कि सेल टैक्स, और फिर एक्सपेंसिव, और फिर उस पार्टी का जो टोटल वैल्यू, जो जिसको हमने माल बेचा है उसको कितना टोटल अमाउंट हमें उससे रिसीव करना है, वो अमाउंट आती है। उसमें क्या होता है, माल का मूल्य प्लस टैक्स का अमाउंट एंड प्लस एक्सपेंसेस टू बी चार्ज फ्रॉम दैट पार्टी फॉर सेंडिंग द गुड्स एट हिज डेस्टिनेशन। वो टोटल वैल्यू हम उससे वसूल करते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ सेल्स बुक एंड इट्स लेजर, ये दोनों कॉन्सेप्ट हम आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो जब हम किसी को उधार माल बेचते हैं तो उस पार्टी का नाम दे रखा होगा, और हमने जो माल बेचा तो देयर इज ए स्पेसिफिक नेम ऑफ द प्रोडक्ट, देयर इज ए स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, देयर मे बी a matter of trade discount to be allowed to the customer at the time of sales, and there may be certain rate of the tax to be charged on a particular product, क्योंकि इंडिया में हमारे जो भी प्रोडक्ट बेचे खरीदे जाते हैं उन पे टैक्स लगता है, और वो टैक्स अभी जीएसटी के नाम से जाना जाता है। वो इनपुट टैक्स कहलाता है एट द टाइम ऑफ परचेज, और जब हम माल बेचते हैं तब हमें वो टैक्स मिलता है तो आउटपुट टैक्स हो जाता है। और ये टैक्स में भी दो पार्ट है हमारे, सीजीएसटी, एसजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड एसजीएसटी का मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो ये टैक्स एट द टाइम ऑफ सेल्स लिया जाता है। तो सेल्स बुक का फॉर्मेट और उसका एक एग्जांपल द्वारा हम एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, इसके माध्यम से ही हम इसकी सेल्स बुक बनाएंगे। कपिल एंड सन्स, बिजनेस का नाम है कपिल एंड सन्स, सोल्ड द फॉलोइंग गुड्स, सोल्ड द गुड्स एज फॉलोज, सोल्ड द गुड्स एज फॉलोज। तो सबसे पहला मई 1 सोल्ड टू राजीव या सोल्ड टू रोहन कर देता हूं, सोल्ड टू रोहन। क्या सोल्ड किया, मान लीजिए ये कपिल एंड सन्स है ना, वो एक स्टेशनरी मर्चेंट है, तो वो क्या बेचेगा, 10 बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑथर का नाम भी हो सकता है, एट द रेट ऑफ ₹480 ईच। फिर 10 बुक्स ऑफ इकोनॉमिक्स एट द रेट ऑफ ₹450 ईच। ठीक, इसमें दे दिया ट्रेड डिस्काउंट, इट इज अलाउड एट a uniform rate to all customers at the time of sale, trade discount rate at the rate of 10%। ठीक है, फिर एड जीएसटी, सपोज 6%, तो 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी हो जाएगा, और एक्सपेंसेस जो है उसमें है हमारे पैकिंग ₹150 एंड फिर कैरेज ₹250। ये एक ट्रांजेक्शन। फिर मई 5 या मई 15 मई 15 सोल्ड टू रवि, रवि को हमने बेचा है 10 डजन
pen at the rate of rupees 10 per pen. Yes. $50 dozen notebook at the rate of rupees 600 per dozen. Then trade discount at the rate of 10%. GST 12%. And expenses में आप लिखेंगे expenses में पैकिंग रुपीज 150 and carriage रुपीज 90. ये दो हमारे ट्रांजेक्शन है. इसलिए हमें सेल्स बुक बनानी है. मैं इसको वर्टिकल फॉर्म में बनाऊंगा तो यहाँ लिखूंगा मैं हेडिंग सेल्स बुक ऑफ कपिल एंड सन्स. कॉलम्स will be like this. सबसे पहले डेट, फिर पर्टिकुलर, या वाउचर नंबर में क्या रहेगा इनवॉइस नंबर, फिर लेजर फोलियो नंबर. देन अमाउंट में दो कॉलम हो जाएंगे डिटेल एंड नेट. द कॉलम विल बी लाइक दिस डेट पर्टिकुलर्स इनवॉइस नंबर सेल्स इनवॉइस नंबर इनवॉइस नंबर फिर लेजर फोलियो क्योंकि सेल्स बुक का भी हम लेजर बनाएंगे तो लेजर फोलियो नंबर फिर अमाउंट का दो कॉलम है अमाउंट रुपीज में दो कॉलम डिटेल एंड नेट डिटेल अमाउंट एंड नेट. अब देखिए हमने जो ट्रांजेक्शन है पहला 2020 ईयर लिख दिया था पहले तो और फिर मई 1 यहाँ ये जो हमने सेल्स बुक ऑफ कपिल एंड सन्स लिखा है इसको आप है ना रेड पेन से लिखें और ये जो टाइप जो कॉलम्स मैंने फिल करे ना डेट पर्टिकुलर इसको भी रेड पेन से लिखना चाहिए. लाइंस आप ब्लू या ब्लैक पेन से ड्रॉ कर सकते हैं. और फिर हमने जिसको माल बेचा है उसका नाम है सोल्ड टू रोहन है तो मैंने यहाँ लिख दिया रोहन. बाकी कुछ नहीं लिखना केवल नाम लिख दिया रोहन है या रोहन एंड सन्स है मान लीजिए उसका नाम तो रोहन एंड सन्स ये नाम लिख दिया मैंने. ये बायर का नाम है. जब हम किसी को माल बेचते हैं तो सेल्स बुक में एंट्री होगी ना उस व्यक्ति का नाम आएगा जिसको हमने माल बेचा. अब फिर उसके बाद पर्टिकुलर में क्या आएगा वो पूरी डिटेल जो आपको क्वेश्चन में दी गई है तो आप ऐसे कैसे उसको लिखेंगे क्या होगा 10 बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी एट द रेट ऑफ ₹480 ईच. तो आप देखिए 480 की एक किताब है 10 का किताब है 4,800 रुपीज हो गए इसका वैल्यू. फिर उसके बाद में 10 बुक्स ऑफ इकोनॉमिक्स तो ऐसे कैसे लिख देना 10 बुक्स ऑफ इकोनॉमिक्स एट द रेट ऑफ ₹450 ईच. तो ये 450 into 10 कितना हो गया 4,500. ठीक. अब ये दो माल बेचा हमने तो इन दोनों की मैं पहले टोटल करूंगा. इट इज 9,300 राइट. अब उसमें से ना हमारा ट्रेड डिस्काउंट है 10% तो वो पहले घटाएंगे. माल का मूल्य लिखने के बाद में हम लिखेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% कितना होगा 930.
इसको घटाने के बाद आप देखिए कितना बचा, इट इज 0 7 12 9 का 3 12 9 3 एंड 8, तो ये 8370 हो गया। अब उसके बाद में जीएसटी लगाना है 6%, तो वो होगा जब हमने माल बेचा है तो हम माल लेंगे एड आउटपुट सीजीएसटी एंड वो टोटल 6% है तो 3% सीजीएसटी होगा और 3% एसजीएसटी एसजीएसटी। तो अब देखिए 8370 रुपीज है ये, इसका 1% हो जाता है 83.7। तब आप देखिए कितना बन रहा है 1% 83.7, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 3 21 का 1 कैरी 2 9 3 3 9 प्लस 2 11 का 1 कैरी 1 8 3 24 25 251.10। ठीक है, 8 की 1440 50, हाँ 251.10 होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 251 को 0.10 को छोड़िए, 251 एंड 251, ये 3% के हिसाब से कितना हो गया 502 रुपीज। 502 रुपीज ये मैंने ऐड कर दिया, तब हमारे हो गया मूल्य 2 7 5 3 8 एंड 8। अब उसमें हम करेंगे ऐड एक्सपेंसेस। ऐड एक्सपेंसेस इसमें क्या है, एक्सपेंसेस में देखो पैकिंग का 150 और कैरेज का 250। तो पैकिंग इज 150, कैरेज 250, टोटल आप 400 रुपये ऐड कर दो आप, और ये ऐड करने के बाद जो टोटल वैल्यू है ना इसको आप बाहर दे दो, 2 7 8 4 12 2 1 ये 9272, और इसके बाद यहाँ एक पूरा रेड लाइन पर्टिकुलर के कॉलम में बना दीजिए। जब एक पार्टी से सारे टर्म से रिलेटेड सारी एंट्रीज हो गई है तो उसके बाद ये रेड लाइन, उसके बाद दूसरा मई 15 को हमारा जो है ना और एक क्रेडिट सेल्स का ट्रांजैक्शन है, सोल्ड टू रवि है, तो रवि एंड ब्रदर्स कर देता हूं। तो यहाँ हमारा बायर का नाम आएगा रवि एंड ब्रदर्स, राइट। अब उसको रवि एंड ब्रदर्स को हमने क्या भेजा है 10 डजन पेन एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर पेन। तो यहाँ पर पेन दिया हुआ रेट और 10 डजन है, तो यू नो हाउ मेनी क्वांटिटी इन 1 डजन, इट विल बी 10 12 यूनिट इन डजन, तो टोटल यूनिट हो गया 10 डजन इनटू 12 इज इक्वल टू क्या हो गया 120 पेन हो गए, और एक पेन की रेट 10 रुपए है ना, तो अगर 10 से मल्टीप्लाई करो इट विल बी रुपीज 1200, राइट। तो मैं यहाँ लिखूंगा 10 डजन पेन, 10 डजन पेन, कोई भी कंपनी का नाम भी हुआ वो भी लिख देना, अगर दिया हो तो एट द रेट ऑफ रुपीज 10 पर पेन, इट इज रुपीज 1200, ठीक है। 10 डजन का मतलब हो गया 120 यूनिट, 120 को आप है ना 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी रुपीज 1200। ये पेन का टोटल मूल्य हो गया 1200। नेक्स्ट आइटम क्या है हमारा 50 डजन नोटबुक। अब उसमें कंपनी का नाम हो सकता है, तो अभी यहाँ नहीं दिया मैं, कोई बात नहीं। 50 डजन नोटबुक कौन सी रेट में, एट द रेट ऑफ, देखो यहाँ डजन ही है, एट द रेट ऑफ रुपीज 600 पर डजन। यहाँ 50 डजन ही दिया हुआ और रेट भी 600 पर डजन है, तो आप 50 को 600 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 5 6 30,000। तो ये माल का मूल्य हो गया 50 डजन नोटबुक का एट द रेट ऑफ 600 पर डजन है, तो
600 into 50 इट इज 30,000। तो अब ये टोटल मान हो गया हमारे कितना 31,200। तो आप इसकी टोटल लगा दीजिए। माल का मूल्य होगा 31,200, उसमें से अब ट्रेड डिस्काउंट है 10% को घटाएंगे तो आप लेस करोगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट 10% कितना हो गया 3,120। उसके बाद में क्या वैल्यू बची इसको घटाने के बाद 0 8 0 11 3 8 and 2 it is 28,080। अब उसमें ऐड करोगे जीएसटी 12%, ऐड आउटपुट सेल के टाइम आउटपुट लगेगा, ऐड आउटपुट CGST वो 3% होगा, सॉरी 12% है तो 6%, और SGST भी 6% था, दोनों मिला के ये 3% है तो इसमें टोटल 6% था। एट द रेट ऑफ 6% है तो ये 3% हो गया। यहाँ एट द रेट ऑफ 12% है तो फिर वो 6% हो जाएगा। तो आप है ना इसका 6% निकालोगे। व्हाट इज 6% ऑफ 28,080 रुपीज? तो इट्स 1% इज 280.8 या we can say 2,808 रुपीज। ये है हमारा 10% और 2% और चाहिए तो 2,280.8 टोटल हो गया 3,369.6 आ रहा है 12%। उसका आधा आप करते हैं ना तो ये हो जाता है 1,685 रुपीज कर देंगे अपन इसका CGST एंड 1,685। तो इट इज 1,685 टोटल 12% होना इट इज इक्वल टू 3,370 आ गया। इसको ऐड करा 0 8 15 5 1 3 4 8 6 11 1 2 3 31,450। अब उसमें अपन ऐड कर देंगे एक्सपेंस। तो ऐड एक्सपेंसेज में ना कैरी एंड पैकिंग का रुपीज 150 है, कैरेज का रुपीज 90 है, टोटल हो गया 250 और इसको ऐड करने का ये आ जाएगा 31,700। और इस तरह से अब आप इसकी पूरी यहाँ अब ये सेल्स बुक हो गई। इसको हम यहाँ सबसे लास्ट में लिखेंगे सेल्स अकाउंट क्रेडिट। सेल्स अकाउंट क्रेडिट इसको आपको रेड पेन से लिख देना और आपका टोटल सेल्स है वो 0 और 2 7 7 2 9 It is 40,972। ये हमारी सेल्स बुक बन गई है। अब सेल्स बुक बनाने के बाद हम इसका जब लेजर बनाएंगे तो हमारे 3 अकाउंट खोले जाएंगे। एक तो खुलेगा रोहन एंड सन्स का अकाउंट, एक खुलेगा रवि एंड सन्स का अकाउंट
और एक जब आपने सेल्स बुक बनाई है तो सेल्स बुक का टोटल होगी, वो हम उसे सेल्स अकाउंट खोलेंगे। तो रोहन एंड सन्स का टोटल जो है ना वो है 9,272 और रवि का है वो है 31,700। ठीक है, अब मैं ये सेल्स बुक मिटा रहा हूं। इसका सेल्स बुक से जब हम जर्नल लेजर बनाएंगे तो एक तो सेल्स अकाउंट बनेगा और एक जो है दो पार्टी है, दो पार्टी को माल बेचा तो दो अकाउंटिंग पार्टी इसके बनेंगे। ठीक है, अब इसका ओपनिंग द लेजर अकाउंट फ्रॉम ए सेल्स बुक, तो इस तरह से कुछ बनेगा। सेल्स बुक का हम जर्नल और लेजर बना रहे हैं। Sales book is a separate subsidiary book which is prepared in a large scale business organization, जहां व्यवसाय में बड़ी मात्रा में माल का उधार विक्रय का ट्रांजैक्शन होता है, वहां ये जरूरी है कि हम सेल्स बुक अलग से बनाएं ताकि जिस कस्टमर को हमने उधार माल बेचा है उसको हम इमीडिएटली सेल्स बुक में आराम से लिख सकते। सेल्स बुक का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए हम अलग से एक अकाउंटेंट का अपॉइंटमेंट कर देते हैं ताकि वो सारी ट्रांजैक्शन को इमीडिएटली लिख सके। अगर हमने किसी को उधार माल बेचा और वो ट्रांजैक्शन अगर हमने लिखना भूल गए तो इट विल बी वेरी ट्रबलसम फॉर द बिजनेस। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को हमने उधार माल बेचा वो वापस देने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि इन प्रैक्टिस हम जिन लोगों से पैसे मांगते हैं हमें पैसा मांगने के लिए जाना पड़ता है, हमें लेने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन जो हमसे पैसे मांगता है वो तो हमसे मांगने आ जाएगा और हम जिससे मांगते हैं उससे रुपए मांगने के लिए हमें जाना पड़ेगा। और अगर आप नहीं गए लेने के लिए तो समझ लो आपके पैसे डूब गए, क्योंकि जिसको पैसा देना होता है ना वो अक्सर भूल जाता है। जब हम किसी से पैसे मांगते हैं बोला आपने अभी तक दिए नहीं करे, मैं भूल गया। अब ये भूलने की बड़ी आदत है, लोग लेना तो याद रखते हैं लेकिन देना भूल जाते हैं। लोगों के इसी स्वभाव और प्रवृत्ति के कारण ही हमारी अंग्रेजी में कहावत है क्या, क्रेडिटर हैज बेटर मेमोरी देन ए डेटर, यानी कि जो लेनदार है उसकी मेमोरी ज्यादा शार्प होती है और देनदार है वो भुलक्कड़ प्रकृति के होते हैं। बट ऐसा है नहीं, लोगों को पता होता है पैसे देने होते हैं लेकिन वो हम तभी देंगे जब हमसे वो मांगेगा। वो इंतजार करते हैं कि हमसे वो पैसे मांगे तो हम देंगे, और अगर आप भी तभी मांग पाएंगे जब आपको पता हो, और आपको पता तभी होगा जब आपने उस ट्रांजैक्शन को प्रॉपर्ली बुक्स में लिखा है। अगर आपने लिखा ही नहीं कोई ट्रांजैक्शन उधार बिक्री का तो पैसे मांगोगे कैसे, आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक बड़े व्यवसाय में प्रतिदिन कई सारे व्यवहार होते हैं और यदि आप उसको इमीडिएटली नहीं लिखते हैं तो वहां उनका भूलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए इट इज नेसेसरी टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन एज एंड व्हेन इट हैज टेकन प्लेस। ये मैं लेजर का फॉर्मेट बना रहा हूं, लेजर ऑफ सेल्स बुक बना रहा हूं। इसमें एक सेल्स अकाउंट बनेगा जिसमें पूरी सेल्स बुक की टोटल आएगी एक पर्टिकुलर पीरियड की। या लेजर वाली हमारे कॉलम में, लेजर में दो साइड है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। हमने सेल्स बुक बनानी है, सेल्स बुक का लेजर बनाना है, तो एक तो सेल्स अकाउंट बनेगा और सेल्स बुक में अगर आपने 3 पार्टी को माल बेचने का ट्रांजैक्शन लिखा है तो उन 3 पार्टी के खाते खुलेंगे। हमारे इस क्वेश्चन में हमने 2 पार्टी को माल बेचा है, उन 2 लोगों के खाते खुलेंगे, तो हमें कुल मिला के 3 अकाउंट बनाने हैं
तो ये इस तरह से बनेंगे। पहला सेल्स अकाउंट बनाया मैंने, दूसरा हमारे बनेगा रवि एंड सन्स, और तीसरा जो बनेगा, सॉरी पहला है रोहन एंड सन्स, ऊपर लिख देता हूं रोहन एंड सन्स, और दूसरा है रवि एंड ब्रदर्स। अब इसमें मुझे पोस्टिंग करनी है, तो क्या होगा रवि एंड ब्रदर्स अकाउंट। तो जब मैं सेल्स बुक का लेजर बनाऊंगा तो एक सेल्स अकाउंट बनेगा। सेल्स का नेचुरल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए मैं यहाँ पूरी सेल्स बुक की टोटल यहाँ लिखूंगा। जैसे 2020 डेट आ गई और सपोज ये मई के हमारे ट्रांजेक्शन है, तो मई 31 में लास्ट डेट लगा देता हूँ और मैं यहाँ लिखूंगा बाई सन्ड्रीज, SUNDRIES, बाई सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। इसका हिंदी में मतलब होता है विक्रय बही के अनुसार विविध विक्रय, और इसकी हमारी पूरी सेल्स बुक की टोटल आएगी और वो थी 40,972 रुपए। फिर हमने रोहन एंड सन्स को जो माल बेचा तो एंट्री बनी रोहन एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो मैं यहाँ लिखूंगा टू सेल्स अकाउंट रोहन एंड सन्स में 2020, उसका डेट थी क्या मई 1, और रवि रोहन एंड सन्स की हमारी अमाउंट थी 9,272, और ऐसे जो रवि एंड ब्रदर्स का हमने माल बेचा है उसमें रवि एंड ब्रदर्स में भी आएगा क्या टू सेल्स अकाउंट, एंट्री होगी ना रवि एंड ब्रदर्स अकाउंट एंड टू सेल्स अकाउंट, और उसका माल का हमारा मूल्य था 31,700, डेट होगी ईयर 2020 एंड मई 15। ये इस तरह से हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे, और फिर इसका अगर हमें बैलेंस निकालना है तो हम इधर भी लिख देंगे 2020 मई 31, हम यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस CD। अब सेल्स अकाउंट में देखिए क्रेडिट टोटल ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस कहलाता है, और इसको हमें अगर ट्रायल बैलेंस बनाना है आगे ले जाना है तो हम टू बैलेंस CD लिखेंगे और पूरी टोटल 40,972, और मई के बाद हमारा नेक्स्ट मंथ जून होता है तो हम जून 1 को यहाँ वापस लिख देंगे बाई बैलेंस BD। तो किसी खाते को बंद कर देंगे हम CD वर्ड लिखते हैं, या उसका बैलेंस निकालते हैं ना, तो जिस दिन बैलेंस निकालते हैं उस दिन हम उसको टू बैलेंस CD या बाई बैलेंस CD लिखते हैं, और नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट डे को रिवर्स साइड में आ जाता है वापस बाई बैलेंस BD। अगर टू बैलेंस CD से अगर हमने इसको बैलेंस निकाला तो अगले महीने में चला जाएगा 40,972, ये टोटल। इसी तरह रोहन एंड सन्स में आपने टू सेल्स आपने लिखा ये राशि, तो अब ये हमारे 2020 मई की बात है, तो मैं यहाँ लास्ट डेट ऑफ मई लेजर ऑफ सेल्स बुक हमने सेल्स अकाउंट बनाया, उसका बैलेंस निकाला। फिर रोहन एंड सन्स है, हमने उसका अकाउंट में टू सेल्स लिखा। अब इसको बैलेंस निकालने के लिए मैं लिखूंगा बाई बैलेंस CD, अमाउंट विल बी 9,272 rupees, and on first day of the next month, that is June 1st, we will write here to balance BD, same amount 9,272, 9,272, 9,002 ये टोटल हुई इसकी, और उसके बाद हमने बैलेंस फॉरवर्ड कर दिया जून 1st को। सिमिलरली इन द रवि एंड ब्रदर्स अकाउंट यू सी टू सेल्स अकाउंट मई 15 को हमारा ट्रांजैक्शन था, हमने 31,700 का टोटल माल सेल करा, और अब इसको बंद करना मुझे 2020 मई 31, हम यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस CD, क्योंकि खाते को बैलेंस निकालने के लिए अगर डेबिट टोटल ज्यादा है तो वो डेबिट बैलेंस कहलाता है, उसको बैलेंस निकालने के लिए हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे डिफरेंस की अमाउंट, तो अमाउंट का डिफरेंस कितना था पूरा 31,700। अब इसको हम नेक्स्ट मंथ में जब ट्रांसफर करेंगे इट विल बी June 1st एंड वी विल राइट अगेन टू बैलेंस BD। BD मतलब बैलेंस ब्रॉट डाउन, शेष आगे लाया गया। तो जब किसी बैलेंस को हम 1 मंथ से अनदर मंथ ट्रांसफर करते हैं, 1 ईयर से अनदर ईयर ट्रांसफर करते हैं,
तब हम बैलेंस CD एंड BD का यूज करते हैं। CD मतलब कैरी डाउन, आगे ले जाया गया, BD मतलब ब्रॉट डाउन, आगे लाया गया। लेकिन जब कोई टोटल को एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाते हैं तब हम CF और BF का यूज करते हैं। टोटल कैरीड फॉरवर्ड, योग आगे ले जाया गया मतलब अगले पेज पे ले जाया गया, और अगले पेज पर हम लिखेंगे टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड, टोटल BF। तो टोटल BF लिखा जाएगा ब्रॉट फॉरवर्ड। तो इस तरह से ये हम सेल्स बुक का लेजर बनाएंगे। तो क्या बनेगा, एक तो सेल्स अकाउंट बनेगा। सेल्स अकाउंट का नेचुरल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है और ये लैंग्वेज फिक्स होगी उसकी। सेल्स अकाउंट में पूरी टोटल आएगी सेल्स बुक की, जबकि जिन पार्टी को हमने माल बेचा उनका इंडिविजुअल अमाउंट, हमें उनसे कितना रुपया लेना है वो इंडिविजुअल पार्टी का अमाउंट आएगा। तो पार्टी अकाउंट में जाएगा टू सेल्स टू सेल्स टू सेल्स, और सेल्स अकाउंट में आएगा बाई सेंटीज एज पर सेल्स बुक, राइट। आई थिंक you got the point. Thank you very much for watching the video. Share this video and like this video. And in our next video, we will consider and we will discuss about positive sales. Thank you very much.